محترم بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پور فتن دور میں اور اس ایمان سوچ ماحول میں دعوت کی مبارک محنت کو چلایا، پھر ہم جیسوں کو لگایا۔ ہم تو اس کے اہل بھی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے معصوم بندوں کا کام ہے جنہوں نے آنکھ کے پل جھپکنے تک اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، ایسے بندوں کا یہ کام ہے۔ لیکن اللہ ہی نے اپنے فضل و کرم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے وسیلے میں یہ مبارک محنت جس کے ساتھ اللہ نے ہم کو نسبت دی ہے، اس پر اللہ کیا دے گا یہ تو بول کے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ ہر چیز بول کے نہیں سمجھائی جا سکتی۔ آم میٹھا، کیلا میٹھا، کھجور میٹھا، تینوں میٹھے ہیں۔ اب کوئی یوں کہ سب تینوں کا فرق بیان کرو تو قیامت تک کی عمر دے دی جاوے پھر بھی اس کا فرق بیان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک آم، ایک کیلا، ایک کھجور اس کو دے دو، وہ خود کھائے گا، وہ خود اس کا فرق محسوس کرے گا۔ ایسے یہ دعوت کی مبارک محنت، اس محنت پر اللہ کیا دے گا دنیا میں اور آخرت میں، اس کو بول کے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ یہ تو آدمی جب چلے گا اور اس کا نفع دیکھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کام کیا ہے۔ دنیا کے ہر کام دیکھو پھر چلو، یہ عجیب کام ہے، چلو پھر دیکھو۔ جب تک نہیں چلیں گے وہاں تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس کام کی سادگی سے لوگ دھوکے میں ہیں۔ کام سیدھا سادہ ہے، ظاہر میں کوئی نظر نہیں آتا، لیکن یہ عجیب کام ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اگر یہ محنت نہ ہوتی تو ہمارا خود کا کیا حال ہوتا۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ اس محنت میں لگنے سے پہلے میں کہاں پر تھا۔ ہمارے پانولی حلقے کے ذمہ دار تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یعقوب جی بھائی، کیونکہ جب میں نے مغل اعظم 36 مرتبہ دیکھی تھی دعوت میں کام میں لگنے سے پہلے۔ پھر ہمارے قاضی صاحب یوں کہتے تھے، پنجاب جو ہے نا، پنجاب وہ پورا جیا ہوئی کے نام اعمال میں ہے، سال لگائے انہوں نے۔ ان کو قاضی صاحب کہتے تھے فاتح پنجاب ہے، اور بڑا مجاہدہ اٹھایا، پیدل چلے۔ اب کہاں وہ ایک فلم کو 36 بار دیکھنا، اور کہاں اللہ تعالیٰ ان سے اتنا بڑا کام لے رہا ہے۔ عجیب محنت ہے یہ۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچے، اگر ہمارے یہاں اگر ہم اس محنت میں نہ لگتے تو ہم کہاں ہوتے۔ ہمارے ضلع میں کتنی ساڑیاں عام تھی، کتنے ہمارے بڑے بوڑھے دھوتی پہنتے تھے۔ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج سے 40 سال پہلے ہماری قوم میں حافظ، ہماری قوم میں عالم، ہماری قوم میں مفتی، ہماری قوم میں کوئی شیخ بنے گا۔ 40 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ ابھی تو ہم یہ محنت ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہیں، لولی لنگڑی کر رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ جب یہ مدرسہ شفٹ ہوا تو باقاعدہ جامع مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ مشورہ ہوا کہ مدرسہ شفٹ ہو جائے گا تو یہ مسجد تو ویران ہو جائے گی، یہاں تو نمازی تو ہے نہیں۔ تو باقاعدہ یہ امور پر مشورہ ہوا۔ حضرت مولانا غلام محمد صاحب جو دارالعلوم کے محتمین صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی کام دعوت کا چل رہا ہے، ہم تو مجبور ہیں، مدرسے کے طلبہ یہاں نہیں سما سکتے، ہم کو تو وہاں جانا پڑے گا۔ رہا مسئلہ مسجد کی آبادی کا، تو اللہ نے دعوت کا کام چل رہا ہے، اللہ اس کی برکت سے اس مسجد کو آباد کرے گا۔ اور یہی ہوا، وہ مسجد بھی چھوٹی پڑی، پھر اس کو بڑی بنانی پڑی۔ کیسے ہوا؟ یہی محنت۔ بہت سی مرتبہ جب بیرون کی تشکیل ہوتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہے، کچھ ہوتا تو ہے نہیں یار۔ ہم جاتے ہیں اور جو ہے نہ ہماری وہ زبان سمجھتے ہیں، ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتا،
لیکن یہ ہمارا قربانیوں کے ساتھ جانا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا ہمارا کیا حال ہے تو ہم کو پتا ہے. ہمارے بڑوں کو اتنا حسن جن ہے ہمارے ضلع پر, پورے ضلع پر اتنا حسن جن ہے کہ باقاعدہ جب یہ طے اس کا مشورہ ہوا کہ بھئی بیرون کی جماعتوں کو کہاں جوڑا جائے, تو تینوں کی زبان پر ایک ساتھ زبان پر بات آئی کہ بھئی ماشاءاللہ آنند کی جماعتیں بہت اچھا کام کرتی ہے بیرون میں جا کر, تو آنند ہی رکھا جائے. یعنی ایک حسن جن ہے. اب ہماری جماعتیں کیسی, ہمارے یہاں نہ اتنے انگریزی دا ہے نہ اتنے عربی دا ہے کیا مجاہدہ. کوئی بیچارہ برتن بیچ کے جا رہا ہے, کوئی پلاٹ بیچ کے جا رہا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے حافظ موسیٰ بھارجا, میں کہا پہلے ہی مقامی آدمی ہے کہ نہیں کوئی یہاں؟ ضرور نہیں, مائکت بند کر دو, کہیں ضرور نہیں, مائکت بند کر دو. ہمارے حافظ موسیٰ بھارجا اور یونس رنگیلا ناروے سویڈن گئے تھے. ناروے سویڈن. احمد آباد کے بھائی اسحاق بہت پان کھاتے تھے, شاہپور کے. وہ جماعت ناروے سویڈن کام کر کے آ گئی. ہم لوگ شاید برازیل جا رہے تھے 97 میں, تو ناروے سویڈن سے ایک خط آیا تھا, تو وہ خط پڑھا گیا. اس خط کا مفہوم یہ تھا, خلاصہ, وہ جو جماعت آئی تھی اسحاق بھائی شاہپور والوں کی, آج تک ایسی جماعت نہیں آئی. اب وہ جماعتیں تھے کون؟ ہمارے یونس رنگیلا سوجیترا کے, ہمارے حافظ موسیٰ بھارجا. حافظ موسیٰ بھارجا مجھے یاد ہے پلاٹ بیچ کر گئے تھے, یونس رنگیلا قرض لے کے گیا. ہوا کیا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں, یعنی کئی سالوں کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ جو جماعت آئی تھی اور وہ جماعتیں جو کام کیا تھا, ایسی جماعت بھیجو. اس میں یہ لکھا تھا کہ ایسی جماعت بھیجو. حالانکہ اس میں کوئی زوردار بیان کرنے والے لوگ نہیں تھے, زوردار قربانی والے لوگ تھے. اور یہ قربانی کے اثرات پڑتے ہیں. یہ بات اپنے دماغ میں سے نکال دو, زوردار بیان کریں گے تو زوردار اثر ہوگا. کوئی تعلق نہیں, کوئی تعلق نہیں بیان ہوگا. اور یہ ہتھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن جب دعوت کا کام شروع کیا, پہلے دن پوری دنیا کو یہ سمجھا دیا کہ اس کام میں زوردار بیان کی ضرورت نہیں ہے, یا تو قربانی چاہیے. کیوں؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کام شروع کیا. اور حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں بہت بھاری لکنت تھی. ایک تو ہوتی ہے ہلکی لکنت معمولی, اور ایک ہوتی ہے بھاری لکنت. مولانا عبید اللہ صاحب بلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں بھاری لکنت تھی. ایک مرتبہ کہا, میں بیان میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے بیان میں آگے بیٹھا تھا. مولانا عبید اللہ صاحب بلیوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں نے براہ راست سنا ہے کہ میں آگے بیٹھا تھا, حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھائیوں دوستوں بزرگوں بولنے کے لیے بب 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 میں نے گنا, مولانا عبید اللہ گنا 18 مرتبہ بولے. اتنی بھاری لکنت تھی. جو اللہ آج مولوی طارق جمیل پیدا کر سکتا ہے, وہ اللہ مولانا الیاس صاحب کو طارق جمیل بنا سکتا تھا, لیکن نہیں بنایا. اللہ نے بہت اچھا کیا. ورنہ آج ہم سب کیا کہتے ہیں, کام تبلیغ کا بہت اونچا, لیکن اس کے لیے زوردار بیان آنا چاہیے. پتہ نہیں آپ لوگ کہو گے نہیں, میں تو یہ ضرور کہتا. تو یہ تو پہلے دن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو سمجھا دیا کہ اس کام میں بیان نہیں ہے, ایسا بھی ہم نہیں کہیں گے. یہ تو ایک ذہن سازی کے لیے, ہمت افزائی کے لیے ہے. ورنہ یہاں تو قربانی ہے, قربانی. جتنی قربانی دی جائے گی, حالات میں آدمی نکلتا ہے, جوان چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے نکلتا ہے, کوئی بیچارہ پلاٹ بیچ سے نکلتا ہے, کوئی بیچارہ قرض لے کے جاتا ہے. یہ قربانی کے ساتھ جو چند باتیں جب کہی جاتی ہے, پھر وہ ان ملکوں میں جاتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ یہ سارا بیچ باچ کے یا میرے اس ملک میں آیا ہے, اور پھر جب ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ ہمارا اس ملک میں آنے کا دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے, ہم کسی دنیا کی غرض سے نہیں آئے, ہم تو یہ چاہتی ہے دین ہماری زندگی میں آ جائے اور یہ دین اس ملک میں زندہ ہو جائے. ان کی اور رونے دھونے پر اور ان کی اور دعاؤں پر اللہ تعالیٰ وہاں کے باطل کو توڑتے ہیں. حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے, وہ گویا گا رہا تھا, ابن مسعود صحابی رضی اللہ وہاں سے گزرے,
आपने सर पर कपड़ा डाल दिया और एक जुमला कहा, सिर्फ एक जुमला, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, क्या ही अच्छी आवाज है, काश के कुरान की होती। वो दिल की बात दिल में लग गई। वो गवैया पूछ रहे, बोले कौन थे? फरमाया इब्ने मसूद सहाबी थे। क्या कह रहे थे? बोले कह रहे थे कितनी अच्छी आवाज है, काश के कुरान की होती। वो गवैया ने गामा सामान तोड़ दिया, आज से बंद। कोई जोरदार बयान किया था? मतलब बोलो खरा, मैं बयान करने नहीं बैठा था, हूं हाँ तो करो यार। वो दिल की बात दर्द वाली थी, वो दिल में असर कर गई और तौबा कर ली। तो इस काम के अंदर मेरे दोस्तों कुर्बानियां हैं, और शैतान हमको यही चकमा देता है कि क्या फायदा हमारा वहां जाकर, कुछ होता तो है नहीं, इससे तो बेहतर है कि हम हिंदुस्तान में कहीं वक्त लगावे, यह हमारी जबान है, लोग समझते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारा ये कुर्बानियों के साथ चलना और उन मुल्कों में जाना और फिर जाकर वहां पर दुआएं करना। पहली जमात जब मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने निकाली, पहली जमात तबलीग के नाम से पहली जमात, वो मुरादाबाद गई थी। मुरादाबाद जमात जब वहां मुरादाबाद गई, कोई बात सुनने को तैयार नहीं, कोई ऐलान न करने देवे, कोई ठहरने भी न देवे, कोई रहबरी भी न करावे। मुलाकात में जाओ आगे, सब आगे जाओ, निकल पड़े। वो जमात रोती रोती अपना वक्त पूरा करके रोती रोती वापस आई। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत खुश थे, जमात आ गई अल्हम्दुलिल्लाह वक्त लगा, और जमात रोती रोती वापस आई थी। वो जमात ने कारगुजारी सुनाई, मौलाना बहुत खुश थे, और मौलाना की जबान पर एक जुमला था, 20 दफन हो गया अब ये उगेगा, 20 दफन हो गया अब उगेगा। पहली जमात मुरादाबाद गई, मुरादाबाद वालों ने ये किया। इस वक्त में दुनिया में जितना काम है वो सब मुरादाबाद के नाम अमल में है। इससे जब बैरून के नाम से पहली तश्कील हुई है तो मुरादाबाद से गई है जमात, जबकि मुरादाबाद वालों ने पहली जमात के साथ ये किया था। तो ये मेहनत अजीब है, जाहिर में हमको नजर नहीं आता क्या फायदा, हम जाएंगे मुल्कों में, कुछ होता तो है। ये जो शुरू में जमातें आई है, एक एक दिन ठहरती थी हमारे इलाके में, वो रातों को उठती थी, रोती थी, ए अल्लाह इस बस्ती में 100% दीन जिंदा कर दे, यहाँ पर हाफिज पैदा कर दे, यहाँ पर आलिम पैदा कर दे, यहाँ पर दीन के दाइयों को पैदा। हम उन्हीं की दुआओं की बरकत है, हम जो यहाँ बैठे हैं, ये सब वो जमातें बिचारी जो आई है, कूड़ती थी, रातों को उठती थी और रोती थी, उसी की हम पैदाइश है। इसे कहते थे हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कि इस वक्त में जितना दीन है वो हमारे अगलों की कुर्बानी की बरकत है, और इस वक्त में जितनी बेदीनी है ये मेरी और आपकी गफलत का नतीजा है। वो तो जमातें एक एक दिन ठहर कर रातों को रोकर चली गई। अभी ये जो 700 जमातें निकली सफर में, मौलाना इब्राहिम साहब के आखिरी दिन था जामनगर में, मौलाना उस्मान साहब ने यहाँ हिम्मत नगर के मशवरे में सुनाया कि आखिरी दिन हमने जामनगर में मौलाना इब्राहिम साहब से कहा, मौलाना हमने आपको थका दिया, इस उम्र में इतना लंबा सफर वलसाड़ से लेकर जामनगर तक पूरे 21 जिले हैं, 21 जिले का सफर हुआ। लेकिन फिर मौलाना उस्मान साहब ने मौलाना इब्राहिम साहब से कहा कि माशाल्लाह बहुत फायदा हुआ, 700 के करीब जमातें बनी चिल्ले की, और 50 के करीब माशाल्लाह 4-4 महीने की जमात। ये बात जहां पूरी की है मौलाना उस्मान साहब ने, फौरन मौलाना इब्राहिम साहब ने कहा दुआओं की बहुत कमी है। पहले जमातें बहुत दुआएं करती थी, बहुत। तो ये जो कैफियत है ना वो बैरून में होती है। रात रोना अगर कोई ना चाहे कि नहीं रोना, फिर भी वो रोएगा। क्यों फारूक भाई, मेरी बात सही है कि गलत? गलत होगी तो वापस ले लूंगा। अजीब रोना आता है, अजीब कैफियत बनती है कि यार यहां कोई पहचान बसा भी जाएगा, अपने इंतकाल दीजिए शू तो जाकर ये कैफियत बनती है। और हमारा ये कुर्बानियों के साथ उन मुल्कों में जाना, उसके असरात है। वो आंखें हमारे पास नहीं है कि उसके असरात हम देख सके। वो तो जिनके पास ये आंखें हैं ये इसके असरात देखते हैं। हर अमल का एक असर है। हमारा एक दोस्त है लंदन में, चिल्ला लगा हमारे साथ बेंगलोर में। उसने सुना एक मतलब हाफिज पटेल साहब के साथ मरकज पे बैठे थे। दफतर हाफिज पटेल ने कहा इस वक्त में कोई जमात एयरपोर्ट पर उतरी है और वो जमात दुआ कर रही है। वो साथी कह रहा है कि मैंने घड़ी देखी
کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت میں جماعت دعا کر رہی، حالانکہ کوئی خط بھی نہیں آیا تھا، کوئی فون بھی نہیں آیا تھا. خیر ساتھی گئے ایئرپورٹ پر، باقی میں جماعت تھی. وہ مل کر پوچھا کتنے بجے پہنچے، بولے اتنے بجے. بولے کتنے بجے دعا کر رہے تھے؟ وہی وقت بتایا جو جماعت حافظ پٹیل صاحب نے بتایا تھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت میں وہ جماعت دعا کر رہی ہے. وہی وقت بتایا کہ اس موقع پر ہم دعا کر رہے تھے. ہر عمل کا ایک اثر ہے. ہم لوگ جب انڈونیشیا جا رہے تھے، مولانا ابراہیم صاحب نے کہا تھا ہمارے یہ جو اعمال ہے نا، اشراق، چاہ، ثوابین، تہجد، تسبیح، تلاوت، تعلیم، گشت، یہ ہمارے اوزار ہیں. کتنا بھی اچھا کاریگر ہو، اگر یہ اوزار نہیں ہے تو کام نہیں ہوگا. بولے یہ ہمارے اوزار ہے، اس سے کام ہوگا. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ذہن بنائیں گے، زوردار بات کریں گے، اس کا نہ، وہ تو اللہ ہی سمجھا دے گا. کام لینے والی ذات کس کی ہے؟ کام اللہ کا ہے. ہدایت تو ہمارے نبیوں کے ہاتھ میں نہیں تھی، ہم کون ہوتے ہیں؟ جب ہدایت نبیوں کے ہاتھ میں نہیں تھی تو ہم کون ہوتے ہیں کہ بھئی اچھی زبان ہم کو آتی ہوگی. اور بھئی وہ کوڑنا، رونا، دھونا. انگلینڈ میں جو پہلی جماعت گئی ہے، پہلے مولانا عثمان صاحب بہت سناتے تھے، پہلی جماعت جب انگلینڈ گئی ہے، اس جماعت نے ایک بریج کے نیچے قیام کیا تھا. ایک ساتھی کو رات کو غسل کی حاجت ہوئی تھی، برف پڑ رہی تھی، اور اس کو غسل کرنے کے لیے ایک ساتھی پانی ڈالتا تھا، ایک ملتا تھا. جیسے ہی پانی گرتا تھا وہ برف بنتا تھا. اس کی وہ کوڑنے پر اللہ نے انگلینڈ کے باطل کو توڑا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے راستے میں نکلا ہے. اس ملک آنے کا مقصد کیا ہے؟ دین زندہ ہو جائے، باطل مٹ جاوے، ہماری تربیت ہو جاوے. اس لوٹ کھسوٹ کے ماحول میں 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ خرچ کر کے اللہ کے راستے میں نکلنا کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تو اللہ ہی آسان کرتا ہے اور ہم جا رہے ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. خدا پاک کی قسم، وہ تو اس مالک کا احسان کہ اللہ ہم کو ہمت دے رہا ہے. یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے. 1,00,000، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ خرچے کی جماعت میں جانے کا، ہاتھ سے پکانے کا، کچھ چاہنے کا نہیں. خود بستر بچھاؤ، ملنے جاؤ، تیور بدلے، منہ چڑھاوے، اور برا نہیں چاہنے کا. یہ سب ویوہار کے بعد بھی اس کی خیر خواہی چاہنا کتنی بڑی بات ہے. یہ تو اللہ معاف کرے، ابھی ہمارے اس کام کو ابھی تک ہم سمجھے ہی نہیں کام کیا ہے. جس کے پاس یہ کام کی اہمیت ہے، حضرت مفتی صفی صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے معرف القرآن پورے کتاب کا ترجمہ لکھا ہے قرآن کا. ان کی خدمت میں جب جماعت پہنچی، جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے جماعت روانہ کی تھی اور کہا تھا حضرت جتنا پوچھے اتنا بتانا. تو جماعت گئی. مفتی صاحب نے پوچھا بھئی نکل کر کیا کرتے ہو؟ تو وہ جو جماعت گئی تھی انہوں نے چند اصول لکھے ہوئے تھے، وہ اصول سنانے شروع کیے. حضرت مفتی صاحب کہنے لگے بس کرو، بس ابھی تو چند میں سے چند اصول سنے. اور حضرت مفتی کہہ رہے ہیں چپ، بس کرو بس. ابدال بن گئے. ابدال کو جو آخری سبق ہے، دل کا سوال نہیں، وہ سبق آپ کو پہلے دن دیا ہے کہ دل کا سوال نہیں. یہ اصول سن کر ہمیں کچھ نہیں ہوتا. جن اللہ والوں کے پاس اس کا علم ہے وہ کہتے ہیں. میرے جو پیر صاحب تھے حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، حضرت شیخ محمد زکریا صاحب کے خلیفہ، وہ مجھے یوں کہہ رہے ادریس میاں جب آپ گشت پہ جاؤ نا اور اس موقع پر جو دعا کرتے ہو اس موقع پر مجھے یاد کرنا. یعنی اتنا بڑا شیخ الحدیث، اور میرے خیال سے 5,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا کئی سالوں سے ان کا معمول تھا اور کئی سالوں تک رہا. وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اللہ کے گشتوں میں جا رہے ہو اس موقع پر جو دعا کر رہے ہو اس دعا میں مجھ کو یاد کرنا. تو میرے دوستو ایک زبردست کام اللہ نے دیا ہے، ایک زبردست محنت اللہ نے ہم کو دی ہے. حق تو یہ تھا اس کام کا کہ ہماری تشکیل کرنی پڑے، تو ابھی تک ہم سمجھے نہیں یہ کام کو. کسی تاجر کے لیے کوئی تشکیل وصولی کی جماعت، صاحب چلو وقت ہو گیا دکان کھولو یار، بھئی رکشہ والے جلدی جاؤ ریلوے اسٹیشن پر مسافر پریشان ہوں گے، بھئی پھیری والے جلدی جاؤ. کسی کے لیے کوئی تشکیل وصولی نہیں. ایک یتیم نبی کی تبلیغ یتیم ہے جس کے لیے تشکیل، جس کے لیے وصولیاں، امڑا نہیں پچھی، امڑا نہیں تھائے، پتہ نہیں کیا کیا ہمارے باتیں ہیں.
जबकि इस काम का नफा हम देख चुके हैं, इस काम का नफा हम देख चुके हैं। आखिरत में तो मिलेगा मिलेगा इंशाअल्लाह, दुनिया में हम देख चुके हैं। ये जो राहतें हैं हमारे पास, ये सफेद कपड़े, ये लोगों का मुसाफा करना, लोगों का दुआओं की दरखास्त करना, लोग हमसे मशवरा, सगे बाप के पास कोई मशवरा देने के लिए तैयार नहीं है। काम करने वाले साथी अपने साथियों से मशवरा ले रहे हैं, कारोबार के लिए, अपने बच्चों बच्चियों के रिश्ते के लिए, अपनी राज की बातें जो अपने अपने रिश्तेदार को नहीं सुनाते, वो राज की बातें बेचारे आकर सुनाते हैं। ये दुआ करेंगे, हमारे काम दुआ से बनेंगे, दुआ से बनेंगे। ये एतमाद कहां से आया? अल्लाह के रास्ते की बरकतें हैं। अगर ये काम ना होता तो हम कहां होते? सोचो, इतनी मस्जिदें होती, इतने हाफिज होते, इतने आलिम होते, इतने जकात निकालने वाले होते। 89 में जब मैं हज में गया और वहां काम में जुड़ता था, तो वहां के साथी मुझे यूं कह रहे थे, भाई जक्की वगैरह भोपाल के, माशाअल्लाह अब आप जैसे जवान हज में आ रहे हैं। यानी जवानी में हज करने का रिवाज ही नहीं था, बुढ़ापे में लोग हज करते थे। और वाकई में सही है। हमारे फजल जी ने 2 महीने जब लगाए तो निजामुद्दीन गए थे 2 महीने में, तो वहां से इनको हाजियों में भेजा। तो वहां हाजियों में मेहनत में वहां के साथी सुना रहे थे कि एक दौर था, दिल्ली में थाली बजाकर ऐलान होता था, किसी को हज में जाना है, कोई हज में जाने वाला नहीं होता था। अब लाखों की तादाद में लोग वेटिंग में है, 2 साल से 3 साल। कैसे हुआ? इस मेहनत से बरकत से हुआ। ये टूटी फूटी और लूली लंगड़ियां मेहनत कर रहे हैं। किसी ने इमाम हरम से कहा, अब तो माशाअल्लाह रमजान की उम्रे में हद से ज्यादा मजमा आ रहा है। तो इमाम हरम ने कहा, ये यूं ही नहीं हुआ, ये यूं ही नहीं हुआ। लोगों, दुनिया में एक मेहनत चल रही है लोगों को फजाइल सुनाने की। लोगों ने तालीम के हलकों में बैठकर फजाइल सुने कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, जिसने रमजान में उम्रा किया गोया कि उसने मेरे साथ हज किया। अब ये फजीलत लोगों ने सुनी, तो अब माशाअल्लाह हद से ज्यादा मजमा रमजान के उम्रे में आ रहा है। एक जबरदस्त काम अल्लाह ने हमको दिया है, एक जबरदस्त मेहनत अल्लाह ने दी है। इसे हजरत मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, ये तो करने अव्वल का हीरा है, आंख पर पट्टी है और हमें पता नहीं है। मौत के बाद पता चलेगा अल्लाह इस पर क्या दे रहा है। सब नियत करो, इंशाअल्लाह इस काम को काम बनाएंगे। अभी तक हमने काम को काम नहीं बनाया। हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह का वो जुमला जो है, काम को काम बनाओगे काम बनेगा, खेल बनाओगे खेल बनेगा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि हजरत जी यूं क्यों कह रहे हैं, खेल बनाओगे तो खेल बनेगा। तो क्या लोग जमात में जाकर खेलेंगे? एक मुद्दत तक मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई हजरत क्या कहना चाहते हैं कि काम को काम बनाओगे तो काम बनेगा और खेल बनाओगे तो खेल बनेगा। फिर कुछ मुद्दत के बाद ये बात समझ में आई कि हजरत क्या कहना चाहते थे। बच्चे कब खेलते हैं? जब फुर्सत होती है। फुर्सत होती है तो खेलते हैं, जहां फुर्सत नहीं है अब बच्चे क्या खेलेंगे? फुर्सत में दावत के काम को करना। तो हमने अभी तक काम को काम नहीं बनाया, अभी हमने खेल बनाया है कि फुर्सत मिलेगी तो गश्त कर लेंगे, फुर्सत मिलेगी तो 3 दिन लगा देंगे, फुर्सत मिलेगी तो चिल्ला लगा देंगे, फुर्सत मिलेगी तो 2.5 घंटे भी लगा देंगे, और जहां मशगूली आएगी छोड़ देंगे। तो अभी तक मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमने काम को काम नहीं बनाया, अभी तक हमने इस काम को खेल बनाया है। फुर्सत में कर रहे हैं, टाइम मिलता है तो करते हैं, जी चाहता है तो करता है, जी पर बोझ पड़ता है तो हम नहीं करेंगे। आपकी तबलीग आपको मुबारक। हालांकि हजरत मौलाना इस्माइल साहब यूं कह रहे हैं, जब किसी मस्जिद में ऐलान होता है नमाज के बाद तशरीफ रखिए, दीन की बात होगी, मौलाना यूं कहते, मेरी हिम्मत नहीं होती है, जिस दीन में अल्लाह ने दुनिया आखिरत की कामयाबी रखी है, उस दीन की बात का ऐलान हुआ है और मैं पीठ बताऊं, मैं पीठ बताऊं। अब तो हम कोई तक्का जाता है तो सटाक लेके ना कहते, भाई ना कहने का भी एक अंदाज है। ये क्या नहीं था, क्या नहीं था? अभी तक हमारे दिलों में इसकी अजमत नहीं है कि क्या काम अल्लाह ने दिया है, क्या मेहनत अल्लाह ने दी है। और एक बात ये भी है, जब मेहनत की इस काम की कदर नहीं होती तो अल्लाह तो बहुत गयूर है, अल्लाह को किसी की नहीं पड़ी। एक तरफ खलील कहा और खलील के अब्बा को ईमान नहीं दिया। खलील का माना दोस्त, और कितनी बड़ी कुर्बानियां दी है। बेटे पे गली पर, बड़ी उम्र में बेटा मिला, उसके गले पर छरी चलाई, अपनी बीवी को और बच्चे को जंगल बयाबान में छोड़ा हुक्म इलाही पर,
अब वो खलील ये चाह रहे हैं कि मेरे अब्बा को ईमान मिल जाए, लेकिन नहीं दिया। एक तरफ हबीब कहा और चचा को ईमान नहीं दिया। अल्लाह को किसी की पड़ी नहीं है। एक मर्तबा हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर पाक फरमाया, जिसका मफहूम है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हिदायत अपने हाथ बस में रखी है। अगर आपके इख्तियार में होती ना तो मेरा नंबर 5वां नहीं होता ईमान कबूल करने में, पहले आप अपने रिश्तेदारों को हिदायत दे देते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हिदायत अल्लाह ने अपने बस में रखी है। अगर आपके इख्तियार में होती तो मेरा नंबर 5वां नहीं होता। तो अल्लाह जिसको तौफीक देते हैं, हिम्मत भी अल्लाह ही देंगे, तौफीक भी अल्लाह देंगे, असबाब भी अल्लाह ही बनाएंगे। हमारे बस में है क्या? हमारे बस में पक्की नीयत, जाहिर नहीं देखना, जाहिर नहीं देखना। अल्लाह ही असबाब बनाएगा। ये कब बनेगा? जब बंदा पहले तय करे। एक आदमी अपना मकान बनाना चाहता है, वो कड़िया को बुलाता है, मेहमान को बुलाता है, और वो कहता है ये बनाना है। वो कहता है मैं तैयार हूं आप काम करने के लिए, लेकिन मुझे इस काम के करने के लिए ईंट चाहिए, कपची चाहिए, रेत चाहिए, सीमेंट चाहिए। अब जिसको काम लेना है वो क्या कहता है? तू रेत कहता है मैं ट्रक भर के रेत दूंगा, तू ईंट कहता है मैं ट्रैक्टर भर के ईंटें दूंगा, तू सीमेंट कहता है मैं पूरा छोटा हाथी भर के तुझे सीमेंट दूंगा, तू काम कर। सेम थिंग काम अल्लाह का है। बंदा यहां तय करेगा मुझे जाना है, फिर अल्लाह असबाब बनाएगा। मैं एक मरतबा साउथ अफ्रीका से आया, जब यहां पहुंचा तो शायद जुमा का दिन था। मोइनुस सब पूर्ण डोडिया, मौलवी उस्मान और सब शायद यहां थे आनंद में। मुलाकात हुई, जकरिया मस्जिद में प्रोग्राम था। रात को मौलवी से कहा कल तुझे हमारे साथ चलना है गोधरा। ठीक है चलेंगे। ले गए मुझे दूसरे दिन गोधरा। तो असर की नमाज के बाद यही दो मरतबा 4 महीने वालों को जोड़ा था। मौलवी से कहा तेरी बड़ी कुर्बानी, तू कल आया है, तुझ बात कर। खैर मैंने की वो टूटी फूटी बात। फिर मौलवी इस्माइल साहब आए, तश्कील में खड़े हुए। मौलाना ने उस मौके पर गोधरा की जबान में एक जुमला कहा था। मौलाना कहा मुझे देखो, गोधरा की जबान में कहा गुजराती में, मुझे देखो, शेमो खेतर नहीं અને ગોમમાં દુકાન નહીં અને દુનિયા આખી અલ્લાહ મન ફેરવશે। શેમમાં ખેતર નહીં અને ગોમમાં મારું દુકાન નહીં, પણ કે આખી દુનિયા અલ્લાહ મન ફેરવશે। ये तो जब बंदा अंदर तय करता है ना, ये इनुस रंगीला जो है सोची तरह का शायद 3 या 4 या 5 सफर उसके हो गए है इसकी कैपेसिटी। और कई साथी हमारे ऐसे हैं जो आज तक अपना खुद का मकान नहीं बनाया और सफर पर सफर, सफर पर सफर, सफर पर सफर, कभी ना नहीं कहते वो। जब भी और ये तकाजा को अल्लाह की तरफ से समझे। जब ये तकाजा आया है तो अल्लाह की तरफ से है, मेरे लिए खैर होगी, मेरे लिए भलाई होगी। इससे मेरे दोस्तों हम जो है ना इस काम को 1 नंबर करें। 2 नंबर दुनिया मना भी नहीं करते, करना है, दुनिया भी करनी है, लेकिन 1 नंबर दीन, 2 नंबर दुनिया। आज मसला क्या है? 1 नंबर दुनिया है, 2 नंबर दीन है। बस इसको आगे पीछे कर लो, फिर मुकद्दर की रोजी मिल जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब तर्केश्वरी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, वो खुदा खुदा नहीं, वो खुदा खुदा नहीं जिस खुदा के दीन की हम मेहनत करें और वो खुदा हमारी मदद ना करे। मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब तर्केश्वरी रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज है, वो खुदा खुदा नहीं जिस खुदा के दीन की हम मेहनत करें और वो खुदा हमारी मदद ना करे। हमारा आरिफ जान अक्सर एक मिसाल दे कि एक औरत जात को एक पड़ोसी के यहाँ से कटोरे में कोई चीज आती है तो एक औरत का जमीर गवारा नहीं करता कि पड़ोसी के यहाँ से कटोरे में भरकर आया है। तो अल्लाह के रास्ते में हमें 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख खर्चे में जाएंगे तो अल्लाह अपने पास रखेगा। जब एक औरत का जमीर गवारा नहीं करता कि पड़ोसी के यहाँ से ये कटोरा मेरे यहाँ पर आया है कुछ भरकर, भाई कसू नहीं, तारीफ तो क्या छूंदो हाल दो, मेथ्यू नाखी दो, खाली तो कटोरो ना जाओ दिए। जब एक औरत का गैरत बर्दाश्त नहीं करती तो हम अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। हम अल्लाह का वादा है 1 पर 10 दुनिया में देंगे, 1 पर 7 लाख, और 7 लाख तो कम से कम है, वरना अल्लाह के दीन की मेहनत करने वालों के अजर व सवाब इस दुनिया में नहीं समा सकते। ये सब लालच दिलाने के लिए है। ये 7 लाख मैंने और आपने इतना सुना कि आज मेरे और आपके कान 7 लाख से मानुस हो गए।
शुरू जमाने में लोगों को 7 लाख समझ में नहीं आते थे, और कहां से आवे? हरम में नमाज पढ़ो 1 लाख नमाज का सवाब, मदीना मुनव्वरा नमाज पढ़ो 50,000 का नमाज का सवाब, अल्लाह के रास्ते पढ़ो 7 लाख। तो कहां से लोगों को समझ में आवे? तो लोग मौलाना मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास गए, और मौलाना मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा, तबलीग वाले कह रहे हैं अल्लाह के रास्ते में निकलकर जो अमल किया जाएगा 7 लाख बढ़ा दिया जाएगा, सही है? तो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह इनकी कब्र को नूर से भर दे, यूं कहा, बेचारे तबलीग वाले डर के मारे कम बता रहे हैं, बेचारे तबलीग वाले डर के मारे कम बता रहे हैं। वाकई में सही बात है। ये तो मौत के बाद पता चलेगा अल्लाह इस पर क्या देगा। ये दुनिया छोटी है, जैसे कोई छोटी तराजू में बड़ी चीज का वजन नहीं हो सकता, ऐसे ही छोटी सी दुनिया में अल्लाह के दीन की मेहनत करने वालों के अजर व सवाब नहीं समा सकते। ये तो लालच दिलाने के लिए कहा जाता है। ये दुनिया मेरी आपकी नजर में बड़ी है, ये तो मच्छर के पर बराबर नहीं है। ये समंदर मेरी आपकी नजर में बड़ा है। कहते दुनिया में 3 भाग पानी है, कितना पानी हुआ? ये तो समंदर की चौड़ाई है, वो कितना गहरा है उसका इल्म अल्लाह ही को है। लेकिन इतने बड़े समंदर के पानी को फिल्टर करने के लिए करोड़ों और मिलियन और बिलियन डॉलरों के प्लांट डालने की जरूरत नहीं है। इतने बड़े समंदर के पानी को फिल्टर करने के लिए सिर्फ जन्नत की हूर का थूक काफी है। बोलो कितनी छोटी दुनिया है। ऐसी छोटी सी दुनिया में अल्लाह के दीन की मेहनत करने वालों के अजर व सवाब नहीं समा सकते। किसी अमल के बारे में आदमी मौत जन्नत में जाने के बाद ये नहीं कहेगा कि अल्लाह दुनिया में भेज दे, बहुत तवाफ करके आऊंगा, बहुत नवाफिल पढ़ के आऊंगा, बहुत रोजे रख कर आऊंगा। किसी अमल के बारे में, शायद मुफ्ती साहब ने इसी महीने में बात कही बयान में, किसी अमल के बारे में नहीं कहेगा कि अल्लाह दुनिया में भेज दे जन्नत में जाने के बाद, सिवाय अल्लाह के रास्ते के शहीद के। अल्लाह के रास्ते का शहीद जन्नत में जाने के बाद भी यूं कहेगा, ए अल्लाह एक बार दोबारा दुनिया में भेज दे, तेरे नाम पर जान दे के आऊंगा। यह है रास्ता कि जन्नत जिसको सुनकर हम कितने मचलते हैं, ये देखने के बाद भी अल्लाह के रास्ते का शहीद तमन्ना करेगा कि अल्लाह एक बार दोबारा दुनिया में भेज दे। वो तो जो इसका मजा चख चुके हैं वो जानते हैं कि मजा क्या है। हमने इसका मजा भी चखा नहीं है। हमारे गोधरा के अब्दुर्रहमान गाजी, शायद 51 4 महीने इनके लगे। आखिरी जो 4 महीने लगे इनके अहमदाबाद में, तो एक दोस्त हमको सुना रहा था कि मौलाना ने फैसला किया कि इस साल अब्दुर्रहमान भाई आपको 4 महीने नहीं जाना। बाकायदा वो रोने लगे और दहाड़े मार के रोने लगे। और मौलाना कहा आप बीमार हैं अभी, आप रुक जाइए। बोले नहीं, मेरी साल से तरतीब है और मेरी तो तमन्ना है कि अल्लाह के रास्ते में मेरी मौत हो जावे। खैर मौलाना ने फिर इनके जज्बात देखकर इजाजत दे दी और अहमदाबाद का रुख दिया। तो उस अल्लाह के वली को मौत कैसी आई? अल्लाह का रास्ता, जुमा का दिन। और गोधरा के साथी यूं कह रहे हैं, हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ा आलिम का इंतकाल होता है ना, तब जाकर वो मजमा होता है। कोई कह रहा है 2 लाख का था, कोई कह रहा है 3 लाख का था। खैर कितना था वो तो अल्लाह को पता है, लेकिन पूरा गोधरा कोई बाकी नहीं होगा जो इनके जनाजे की नमाज में ना हो। जैसे जियोगे ऐसे मरोगे, और जैसे मरोगे ऐसे उठाए जाओगे। ये है मेहनत। हालांकि वो आदमी शुरू में ट्रक ड्राइवर था, कहां से कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। 51 4 महीने, वो तो मेरे दोस्तों एक मेहनत। और ये मेहनत सिर्फ हमको ऐसा थोड़ा है कि भाई चलो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वक्त लगाना है कि भाई चलो 22 के 4 महीने का बैरून का खाना बाकी है, तो बैरून में भी हमारा एक सफर हो जाए, बैरून का खाना पूरा हो गया। ये तो हम अपनी कब्र आखिरत बनाने के लिए कर रहे हैं। ये जो कुछ अमल है, चाहे हमारी मस्जिद की तालीम हो, पहला गश हो, मस्जिद और जमात पे बैठना हो, 2.5 घंटे हो, ये जितने अमल हैं ये सब हमारी आखिरत बनाने के लिए है। और आखिरत बहुत भयानक है। ये कोई लैला मजनू के किस्से नहीं है जो दिल बहलाने के लिए कहे जाते हो, ये हकीकत है। हम अपने मकान में 10 पैसे की खीली बेकार नहीं लगाते, 10 काम गिनवाते हैं। खीली क्यों लगाई? ताकि चाबी लटकाएंगे, घड़ी लटकाएंगे, कैलेंडर लटकाएंगे। अल्लाह ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, बेकार बनाई। फिर अल्लाह ने हमको ईमान दिया, ईमान की मेहनत पे लगाया। फिर इस मेहनत का नफा हम देख चुके हैं। इस मेहनत का नफा हमने अपनी आंखों से देखा। बीवी फर्मा बरदार हो गई, बच्चे फर्मा बरदार हो गए, भाइयों में आपस में मोहब्बतें आ गई, चीजों में अल्लाह ने बरकत कर दी।
इज्जत हो अल्लाह ने दे दी। ये सारा हमने देखा। ये सब देखने के बाद भी अब अगर इस काम को हम अंगूठा बतावे तो ये तो बहुत जो है हमारे लिए गैरत, हमारे शान के खिलाफ है। इसे तय करो इंशाअल्लाह। हमारे लिए जो भी मशवरा करो, जहां भी मशवरा करो, हम तैयार हैं। बहुत देरी इंशाअल्लाह यार, हैं? अंदर से तय करो यार। वो तो मौत के बाद पता चलेगा अल्लाह इस पर क्या दे रहा है। एक एक मुल्क जब खुलेगा तो अल्लाह ताला किसकी बरकत से कितना काम हुआ वो हमको नहीं पता। इसे तय करो इंशाअल्लाह कि हमको 2022 में बैरून का सफर करना है। सब नियत करते हैं। अभी जो है ना भावनगर में मशवरा है 24, 25, 26 फरवरी को वहां पेश होना है। और वहां पेश होने के बाद रुख आएगा, फिर जो है तरतीब बनेगी। शायद रमजान या रमजान के बाद निकलने का होगा। वो तो जब रुख आएगा फिर साथियों को जमा करेंगे, कार्यवाही होगी और फिर तय करेंगे कौन सी तारीख को निकलना। तो कौन मर्द मुजाहिद है जो अपने आप को पेश करता है कि इंशाअल्लाह ये भावनगर में पेश होने के लिए मैं तैयार हूं। हिम्मत करें, अल्लाह ताला बहुत देगा माल, घबराओ मत, बहुत देगा इंशाअल्लाह। ये तो हिम्मत के कामों में से है। वो बनी इसराइल में एक आदमी रोजी से बहुत परेशान था, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम से आकर कहा कि यार मेरे लिए एक काम करो, मेरी जितनी रोजी है सब एक साथ दिलवा दो। आप चूंकि कलीमुल्लाह हो, डायरेक्ट अल्लाह से बात करते हो, तो मेरी सब रोजी एक साथ मिल जाए, मैं तंग हो गया हूं रोजी से। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि अल्लाह तेरा बंदा ये चाहता है। तो अल्लाह ने जवाब पे कहा, मूसा अगर वो एक साथ सारी रोजी मांगता है तो उसकी से सिर्फ 10 रोटियां बनेगी। हम थोड़ा थोड़ा इसलिए दे रहे हैं ताकि और थोड़ा ज्यादा जी ले, लेकिन वो तो एक साथ मांग रहा है। तो अल्लाह ने दे दिया और वाकई में उसकी 10 ही रोटियां बनी। लेकिन वो था बाबू फ्रूट वाला जैसा, उसे 2 सखावत की 10 में से, तो अल्लाह ने 20 लौटाई। तो उसे 4 सखावत की तो अल्लाह ने 40 लौटाई। उसने 8 सखावत की तो अल्लाह ने 80 लौटाई। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे थे और एक आदमी आवाज दे रहा है, आओ भाई खाना खाओ, आओ खाना खाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, मेरी उम्मत में ऐसा कौन है जो ऐसा लंगर खाना चलाता है, इसकी जियारत करनी चाहिए। जाकर देखा तो वही आदमी, तो वो तो चूंकि कलीमुल्लाह थे, डायरेक्ट बात की गई, अल्लाह ये क्या, उस दिन क्या कहा था, क्या देख रहा हूं। अल्लाह ने फरमाया मूसा जो देख रहे वो भी सही है और जो उस दिन कहा था वो भी सही है। बात दरअसल ये है कि उसकी 10 ही रोटियां बनी थी, उसने 2 सखावत की। हमने, हमारा 1 पर 10 का वादा है, हमने 20 लौटाई और उसने 4 सखावत की। और ये मुझसे ज्यादा सखी बनना चाहता है। हम दोनों की कंपटीशन चल रही है। मैं जितना दे रहा हूं वो दे रहा है, वो लगा रहा है, वो जितना दे रहा हूं लगा। तो हम भी जितना अल्लाह के नाम पर लगाएंगे अल्लाह लौटाएगा। कहां से लौटाएगा वो हमको देखने की जरूरत नहीं है, वो लौटाएगा। तो कौन तैयार है बोलो। बहुत सौ को पहले दे देता है अल्लाह, बहुत सौ को बाद में देता है। वो अल्लाह की हिकमत है, किसको कैसे चलाना अल्लाह जानता है। कौन तय करता है? माशाअल्लाह। और बोले बिलाल है, बिलाल इब्न हबीब सारसा। भाई बोले, भाई बोले, हिम्मत करे दोस्त। असफा क्या कह रहे हैं? तो खड़े हो जाओ, क्यों यार, नाम नहीं लेना चाहिए बेटा। माशाल्लाह, जो जितनी आसानी से तैयार होता है, तजुर्बा ये कितनी आसानी से अल्लाह उसको सफर करवाते हैं। और जो जितने नखरे करता है, अभी नहीं फिर बाद में बताऊंगा, सोचूंगा, देखूंगा, मशवरा करूंगा, तो मदद भी आती है उसके साथ। ऐसी आती है, जैसी शहादत ऐसी मौत, मदद। बोले भाई, जिनके 2-3 हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बहुत से ऐसे होंगे 5 साल हो गए, वो अपने हाल पर रहम खावे। ये माल अल्लाह ने इसीलिए दिया है। और माल तो बुनियाद है ही नहीं हमारे यहां। हमारे यहां तो सिफात है और सिफात पर ही जाता है, वही कुछ काम करता है। ये सिफात इसलिए मांग रहे हैं
کہ وہ وہاں جا کر روئے گا، صلاۃ الحاجت پڑھے گا، خوشامدیں کرے گا، تو اس کے رونے پر کام ہوگا اس ملک میں؟ بولے اچھا ایک کام کرو، اس میں 19 20 21 کتنوں کا چلہ لگ گیا ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ. 19 20 21 یہ تینوں سال کے 4 مہینے چلے لگ گئے. ساتھی کھڑے ہو جاؤ. سلیم بھائی آپ کا تو مشورہ ہو گیا، آپ کو جانا ہے، چلو آپ بیٹھ جاؤ. مفتی صاحب ابھی آتا ہوں، میں بھیجتا ہوں. اتنا ہٹیں گے تو پتہ چلے گا. آج لے جاؤ 19 20 21 باقی ہے سال کا چلہ بھی. بھائی اچھا اس میں 19 کا لگ گیا، 20 کا نہیں لگا، 21 کا لگ گیا. وہ ساتھی کون ہے؟ وہ بھی کھڑے ہو جاؤ. 19 کا لگ گیا، 20 کا باقی ہے اور 21 باقی ہے اور 21 بھی لگ گیا. آپ بھی جاؤ، آپ بھی جائیے، ادھر جائیے مفتی صاحب کے ساتھ. میں نے کہا 20 کا باقی ہے، پتا ہے. باقی قریب آ جاؤ. ہاں تو بس یہ تم نے الگ کرا بھائی. قریب آؤ باقی سارے. وہ دوستوں قریب آؤ. بھائی آ جاؤ، آگے بڑھو، آگے بڑھو. کیوں آصف بھائی افغانی جا رہے بھاؤ نگر؟ رابے میں نہیں گیا. تقسیم ہو رہی વરસ તો ચિલ્લો તો યાર આપણો કોઈ દિવસ કામ પૂરો નહીં કરવાનો. આપણું વરસ જ 11 મહિનાનું 40 દિવસ આખર હતા. બાકી બધું માટી નાખી કંકેરી નાખવું રહેશે. અને પોતાના અમલે આદમી કહે છે કે અમારે જે કરવાનું હતું કર્યું, હવે આગળ તું જાણું તારા આમાં. હદરત શેખે લખ્યું છે મફત ये तो आंसू बहा देंगे. शायद हजरत शेख નો મતલબ એ છે કે જો રડવાના પૈસા થતા તો લોકો ના રડે. मुफ्त के तो आंसू बहा देंगे. તો તમે લોકો એ તો તય કરો. પરંતુ ચીલો વગર તશ્કીલ આપીશું. તશ્કીલ બી ના કરવી છે. પોતે મહેનત કરે, પોતે જમાત બનાવે અને જમાત બનાવીને લઈને ચાલે. આ પહેલા દરજો એ વરસ થઈ ગયું, પોતાની તશ્કીલ કરી, પોતાની જાતની તશ્કીલ કરી. બહુ જ પડે છે 50 દાડા તો કશું બહુ ભારે નહીં. આજકાલ વખતમાં બરકત છે નહીં. એક જુમાથી બીજી જુમા કેટલી જલ્દી આવે? 5 જુમા પડો ચીલો પતી જાય છે. તો વરસનો ચીલો તો કોઈ હિસાબે નાગા ના કરવું જોઈએ. ચલો આપણે અલ્લાહ માફ કરે. હવે 5 તારીખથી 4 મહિનાની અંદરૂનની જમાત જાય છે. એમાં કોણ તૈયાર છે 5 તારીખથી અંદરૂનમાં જવા માટે? 4 મહિના 5 ફેબ્રુઆરી. ચલો ફેબ્રુઆરીમાં જમાત જશે, એમાં કોણ તૈયાર કરાવવા? બોલો અંદરૂનમાં. ચલો ઉભા થાવ યાર, કેમ ઘરે બધે હાથ જોડાવવું પડે યાર? નક્કી થઈ ગયો તમારે ફટાક લઈને દર વખત લખાઈ કરવાનું. કબૂલ કર અલ્લાહ. ભાઈ સુબહ ઉઠ બાંધ કમર ક્યાં ડરતા હૈ. ઉભા થાવ. આજે તું કઈ લખાવ્યું પછી શું કહું? માશાઅલ્લાહ.
اللہ قبول فرمائے, اللہ مدد فرمائے. بھائی یاسین بھومل ہے, یاسین بھومل, حاجی شکیل, حاجی شکیل آج ماشاءاللہ انہوں نے گھر میں بیٹھ کر پکا ارادہ کیا. دعا کرو ان کے لیے, اللہ ان کو بہت طاقت, قوت, صحت, تندرستی دے. چلو, اور آج تو 6 نام آئے نا انعام میں سے صبح. کہاں گئے وہ فاروق بھائی؟ میں چھپ کے بیٹھ میں شو کراؤں گا. چھیلی اور چوکا چھکا مسال لگا ہونا انہوں نے ہمیں شکر وان کیا رہے دیکھو بی ایس این ایل نے بوال دی تو جی بس ڈیوٹی بال دو. اللہ نے نمبر بتاؤ تو بتا અત્યારે અમે તમને જાલીમ લાગીશું, ખાટકી લાગીશું, સહાય લાગીશું, કઈનો ધોવા વાળશો બધી તમારે બસમાં એટલું કરો ને આગળનું અલગ ઊભું થવાનું આપણે બસમાં આપણો બસ માશાઅલ્લાહ. અલ્લાહ કબૂલ ફરમાવે, અલ્લાહ મદદ ફરમાવે, અલ્લાહ इनको ताकत को इंशाअल्लाह ચાલે. એવું બોલો બોલો ખરા યાર हैं बोलो मुझे इंशाल्लाह चाहे अगर आप इंशाल्लाह और बोलो कहाँ है भाई अपना फारूक? महीने के बाद समझ बताओ इंशाल्लाह. फारूक नहीं है, यासिर कहाँ है आपका दोस्त? आपको जून में जाना है. फोन नहीं करे तो जाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को जून में पेश करो. जून में जाने का मतलब 3 महीने समीर बेलू શું કરીશ? તમને અમાર બલૂનો બિહાર મોકલો હોય તો શું કરવાનું? पेश करें तो अप्रैल मार्च के फरवरी में पेश करें तो मार्च अप्रैल में 3 महीने कार्रवाई में नहीं बाकी अब देखो हमारी ये 3 जमातें हैं तो उच्च काम करना चाहिए मलावी तीनों जमातें मलावी वाली जमात काम कर रही है. उधड़ू जाफर की जमात कल परसों और पहले लाइब्रेरिया था क्या के बाद भी वीजा नहीं मेरी ग्रुप बदल गया है. कहने को अच्छा जिले यही लग जाएगा हिंदुस्तान तो जिले वहाँ करने जाएंगे ये आप जरा तो कर जून में जाना चाहिए. 2 महीने 3 महीने अगर इस दिमाग में पेश किया जाएगा उसके बाद वो 2.5 महीने लगेंगे. देखो गुणी है करके बताओ जुलाई में जाने वाले अपने आप को पेश करके इंशाल्लाह जून में जाना, इंशाल्लाह फरवरी में पेश हो, मार्च में पेश हो. बात समझे ना भाई? जून में जाने का मतलब है जून की पहली तारीख को पेश हो. कल आपको दिखाते प्लान में ऐसा नहीं होगा. कार्रवाई मतलब ऐसा कहा जाता है कि बहुत साल भर कार्रवाई चलती रहती है, 6 महीने कार्रवाई चलती है और फिर भी जमात का ठिकाना नहीं पड़ता है. जैसे हमारे एक सचिव वो क्या नाम है मेहसाणा की जमात